Hi guys. Hello ma'am. How are you? Hello, how are you, Neha? I'm doing good. Good, good. I'm so excited. And ma'am, are you enjoying winters? Yeah, very much, pretty much. Thank you for joining, ma'am. Yeah, my pleasure. Okay, is it the network issue with my network or I can't see you? I can see you properly, no issues. Okay, okay, okay. Let's jump to the first question. Let's suppose, ma'am, I have my theoretical knowledge with me. I watch a lot of YouTube videos and I know a lot about stock market, but practically, I haven't invested in stock market. I haven't invested in mutual fund, but I'm interested for trading. Do you suggest Yeah. trading for me? Okay, so I'll tell you that generally we should first gather some knowledge and then only start our investment or trading journey. Okay. Shall I do one thing? 1 minute. Let me just. I think there's some network issue as well. Uh, yeah, much better. Yeah, much better. Okay, but I can see you properly. Don't worry. Okay, okay. So going back. Going back to the point that should you be starting your trading journey, so I personally feel that we should gather some knowledge and then only we should start our trading or investment journey. I feel that if you are having no knowledge or less knowledge, both are dangerous. Here you are betting your hard-earned money to trade. So I don't think anyone would want to, bet their hard-earned money to incur some losses in the beginning of the career itself. So it's always better to first gather some knowledge, then start your journey. Okay, as I told you, ma'am, that I have knowledge also of stock market. Many people watch Yeah. YouTubes also, and then you read articles about stocks and news as well. So, is it Mhm. advisable for them to start trading? My question was this: that we have little Okay, bit of knowledge also, correct. but So should in that we case, I'll jump tell to you, trading? Mhm. I personally feel that trading is not a very good idea, is my thought process. Always you should look at stock market from an investment angle. Okay. Because trading, I think, comes a little bit more of, people call it like satta or gamble, wherein you just bet on a very minor intraday movement. So instead of that, I believe that, I'll tell you my thought process. I believe that whenever I'm buying stocks of any company, I Mhm. believe that I'm actually investing in that business. Right. Okay, so if I'm investing money in that business, now you can imagine that I start my own business. Will my business grow in a single day? Answer is obviously no. It will take some time. थोड़ा तो time Right. देना चाहिए उसको, and then This only is in a longer time period, then it will give me good returns. So similarly, I feel that whenever you're investing, do investing, not trading. Believe in the business that you're investing. अगर आपको बिजनेस में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में वो आपको अच्छे से पैसा बना के देगा. Mhm. So, ma'am, you're saying that instead of trading, we should first take investing as our first step. So, in Yes. investing also, how do we choose stock? How do we choose multi-bagger stocks? How do we find that? Yeah. Shall I speak in Hindi? There are many comments who are saying Yes, that, ma'am, actually, please speak my in Hindi. audience, yes, ma'am, actually, my audience, is of Hindi language only. ओके ओके, ठीक है ठीक है. मेरी हिंदी इतनी भी बेकार नहीं है, शायद आपकी जितनी फ्लुएंट नहीं रहेगी, लेकिन ठीक है, काफी हद तक ठीक है, संभाल लेंगे उतना मुझे सब. Okay, okay. ठीक है. तो अच्छा, मैं जो बोल रही थी आपको कि डेफिनेटली आप जब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो दो चीजें आपने देखनी चाहिए. एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस. तो हाँ जब जी. भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हो तो आप पहले इकोनॉमी के बारे में आप चेक करना चाहिए अपने. इकोनॉमी का थोड़ा एनालिसिस करने के बाद आप इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहिए. फिर इंडस्ट्री एनालिसिस बिल्कुल. के बाद आप कंपनी एनालिसिस पे जाते हो. ठीक है, अभी Right. इकोनॉमी का एनालिसिस करना है तो जस्ट एज एन एग्जांपल, अभी आपने शायद मिसेस बेक्टर्स कंपनी करके जो अपने अभी IPO. रिसेंटली आईपीओ आ रहा है, तो उसका अगर मुझे इकोनॉमी एनालिसिस करना है तो मैं देखूंगी कि अभी इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है. क्योंकि मिसेस बेक्टर्स का अगर आपने प्रोडक्ट देखा तो मेन उनका रेवेन्यू जो आता है वो बिस्किट से आता है और ब्रेड से आता है. तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा
एज, मतलब जिनकी एज बहुत ज्यादा है, ऐसा वाला अगर अपना पॉपुलेशन का डेमोग्राफी होता था, तो इन सिंपल वर्ड्स बूढ़े लोग ज्यादा होते थे अगर इंडिया राइट में, राइट। तो जी ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स बिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल। अगर यही एज डेमोग्राफी अगर इंडिया का ऐसा है कि जो यंग पीपल ज्यादा है, तो यंगस्टर ज्यादा है। बिस्किट ब्रेड तो आराम से उतना ज्यादा सेल होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। तो अभी फिलहाल इंडिया का ऐसे है कि अपना जो एक मीडियन एज है इंडियंस का, एक ऑन एन एवरेज एज जो है वो 28 साल का है। ये अपना इकोनॉमी एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो 28 साल की उम्र अगर ऑन एन एवरेज मेजोरिटी इंडियन लोगों की है, तो ऐसे सिनारियो में ये ऐसी जो कंपनीज है वो डेफिनेटली ज्यादा बेटर कर पाएंगी। अब इकोनॉमी एनालिसिस ये होने के बाद अपन आते हैं अभी इंडस्ट्री एनालिसिस में। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम देखते हैं बिस्किट्स की, अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो इंडिया में बिस्किट्स कैसे कंज्यूम होते हैं, क्या रेट पे कंज्यूम होते हैं, ये भी थोड़ा सा अपने वो एनालिसिस करना चाहिए कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं क्या, कि जो बिस्किट्स बनाती है। तो उसका एक एग्जांपल, जब मैं इस कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रही थी तब पता चला कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 2.5 किलो बिस्किट एक इंडियन हाउस होल्ड खाता है एक साल में। हम्म। मैं रिपीट करती हूँ, 2.5 किलो बिस्किट एक इंडियन हाउस होल्ड कंज्यूम करता है एक साल में। और यूके के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूके में वो रफली 17 किलो पर पर फैमिली ओ माय इतना होता है गॉड। यूके में। ओके, तो अब आप देखेंगे कि इंडिया और यूके का अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक डेवलपिंग कंट्री वर्सेस एक डेवलप्ड कंट्री में, तो इतना अगर गैप है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि चलो 2.5 से डायरेक्टली अपन भी 17 तक जाएंगे, बट डबल भी अगर हो जाता है तो ये इंडस्ट्री ऐसा है कि जो डेफिनेटली ग्रो करेगा। और तो मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो ग्रो कर सकता है। और ठीक है, राइट तो राइट। अगर मुझे लगता है हाँ हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, फिर मैं वो इंडस्ट्री को टिक ऑफ कर देती हूँ। अब इंडस्ट्री अच्छा है, अब मैं जाती हूँ कंपनी में, तो कंपनी सही है कि नहीं ये मुझे अगर देखना है, तो उसके मुझे फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। फाइनेंशियल्स में कंपनी अच्छी है क्या, जिसमें मैं उनकी टॉप लाइन जिसको बोलते हैं हम, की सेल्स अच्छी है कि नहीं है, फिर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, उसकी बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। जी जी। बट मैम, जब हम टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेशियोज आते हैं, बहुत सारी चार्ट्स आते हैं। तो जी कौन कौन से हमें देखने चाहिए ताकि जल्दी से हमें पता लग सके उसके बारे में। डेफिनेटली। तो मैं आपको मतलब मैं दोनों अलग अलग रखूंगी, टेक्निकल एंड ओके। फंडामेंटल एक साथ नहीं लाऊंगी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। तो पहले मैं जी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करी। तो फंडामेंटल में कैसे होता है टिपिकली, कि आप रेशियोज अगर देख रहे हो, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो एक रेशियो की जो आप पक्का देखते ही देखते हो विदाउट फेल बिफोर इन्वेस्टिंग, तो फॉर दैट इट विल बी लाइक आरओई और आरओसीई। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। तो मैं अगर ओनर हूं कंपनी की और मैं कंपनी में पैसा डाल रही हूँ कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म। तो मुझे जी उस कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, मेरी इक्विटी पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, इज आरओई। अगर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करके सिर्फ 5%, 6%, 7% इतना ही मिल रहा है, तो मैं क्यों मेरा दिमाग फोड़ूंगी उस कंपनी के ऊपर, उससे अच्छा मैं एफडी में पैसा डाल के बात खत्म कर एफडी। दूंगी, है ना। तो अगर मुझे इस कंपनी का आरओई मिनिमम, मेरा मेरा बेंचमार्क है 15%, कम से ओके। कम 15% अगर आरओई मुझे मिल रहा है, तो ही मैं उस बिजनेस की तरफ देखूंगी भी। अगर मैं उतना भी नहीं मीट होता है, तो वो बिजनेस मेरे बेसिक फिल्टर में भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, हाँ मैं जी। ऐसे मेरे कोई कोई फिल्टर्स रहते हैं। सो जैसे मैं उसको बोलती हूँ, मेरी 8 पॉइंटर थियरी बोलती हूँ मैं उसको, कि मैं ये 8 चीजें टिक ऑफ करना पसंद करती हूँ, ये 8वीं चीजें में फिट हो जाता है, तो ये मेरे कंपनी, मतलब आप ऐसे विजुअलाइज करो कि मेरे हाथ में छल नहीं बोलते हैं ना, छल नहीं बोलते हैं ना जी उसको जी, हिंदी में। छलनी। सही। हाँ, तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स ऊपर से गिर रहे हैं, तो मैं उसमें से 8 ऐसे निकालती हूँ, 8 फिल्टर में से कर जो देते हैं। 5 होके नीचे गिरता है बस फिल्टर कर देती हूँ, जो 8 में से नीचे आया वो कंपनी मैं फिर शॉर्टलिस्ट करूंगी एनालिसिस के लिए। तो ये ओके सब ओके। क्या क्या कौन कौन से 8 पैरामीटर्स है क्या है, ये सब मैंने कोर्स किया है, फंडामेंटल एनालिसिस करके मैंने एक कोर्स बनाया है बेसिकली। ओके। इट्स एन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स विच इज हाँ ऑन माई जी। वेबसाइट rachanaranade.com। तो उस वेबसाइट पे मैंने वो मतलब एक फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स किया, उसमें ये एक पैरामीटर इन डेप्थ बताया कि आप क्या देखना चाहिए, अपने एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ओके ओके। अब मैम, अगर हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा जी एक क्वेश्चन है कि जी जैसे कि कोर्सेज है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, 3000 से स्टार्ट होते हैं जनरली स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज होते हैं। एंड देन बिल्कुल। यहाँ पर बुक्स भी है हमारे पास, न्यूज आर्टिकल है, एंड देन वीडियोज है यूट्यूब पर, तो बहुत सारी फ्री वीडियोज है, आपकी वीडियोज से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो अगर एज अ बिगिनर जिनके पास ज्यादा फंड्स नहीं होते बट दे वांट टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट, तो वी शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक दीज कोर्सेज आल्सो, इज इट मुझे बिल्कुल ये एडवाइजेबल? लगता है, डेफिनेटली मुझे लगता है, क्यों बताती हूँ मैं आपको।
कि जी आपको आज ऐसा सिनेरियो है कि आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप इसमें से एग्जैक्टली क्या कंज्यूम करना चाहते हो यही समझ में नहीं आएगा। हर राइट एक बंदे राइट की यही हालत है अभी कि मैं यूट्यूब पे जाऊं, आप कोई भी एक टर्म सर्च करो, आपको कम से कम 10 वीडियोस मिलेंगे उसके ऊपर। सेम चीज होती है गूगल में भी, आप कोई भी एक टर्म डालो उसमें हर एक जगह पे 10 10 12 12 आर्टिकल्स कम से कम मिलेंगे। लेकिन इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, एज ए स्टूडेंट भी नहीं है कि मैं हर एक एक कंसेप्ट के लिए 10 10 वेबसाइट्स ढूंढते बैठूं, 10 10 यूट्यूब वीडियो देखते बैठूं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक कोई रिलायबल कोर्स मुझे ऐसे मिल जाए कि मुझे वो टर्म एकदम सही से समझ में आएगा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ में आएगा, मुझे उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आएगा, तो डेफिनेटली मैं उस चीज में इन्वेस्ट करना मेरा प्रायोरिटी रहना चाहिए फिर। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप लेट अस से मेरे कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हो तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड बेस फॉर यू टू टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है मुझे ये सब चीजें पता है अभी, इस बेसिस पे मैं कोई भी आगे का मेरा एक ट्रेड या मेरा एक इन्वेस्टमेंट जर्नी मैं चालू कर सकती हूँ, जिसमें मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं लगे कि यार मैं विदाउट कुछ नॉलेज तो इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ ना। ओके 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 मैम अभी जैसे लॉकडाउन के वक्त निफ्टी 7,500 के पास पहुंच गया था एंड यू बीइंग अ इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो और अभी क्या है कि अभी हाई टाइम पे है, ऑल टाइम हाई पे है। तो जब लो पे होता है तो हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हाई पे होता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए? ऐसे ऐसे मैं बोलूंगी कि जब मार्केट्स नीचे गया था तो आप भी शायद तब मार्केट में डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, मार्केट तब जब नीचे गया था सात मतलब पहले गया लेटेस्ट से 8,000 के आसपास, तब 7,500 11,000। उसके बाद हम्म। अगर आपको किसी ने पूछा होता था आपको लगता है क्या 12,000 मार्केट जाएगा यहाँ से सीधा, तो आपका आंसर क्या होता था कि नहीं मुझे तो लग रहा है यार 7,000 तो नीचे जाएगा, और है ना, फिर 7,000 तो और किसी ने बोला था तो आप बोलते थे नहीं शायद 6,500 तक जाएगा नीचे। आप क्या मैं क्या सभी इसी इसी डिलेमा में रहते हैं, शायद और 500 1000 पॉइंट का करेक्शन आ क्योंकि जाएगा। उस वक्त डरा भी दिया गया था कि कोरोना जाएगा एग्जैक्टली नहीं बहुत टाइम तक। एग्जैक्टली और टीवी एग्जैक्टली पे न्यूज में ऐसे आ रहा था कि हाफ इंडियंस को कोरोना हो जाएगा। तो बहुत डर करेक्ट था उस करेक्ट वक्त। राइट, इतना डर था एग्जैक्टली कि एग्जैक्ट अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी सेविंग्स एंड देन उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आपने होल्ड किया था, या आपने क्या अप्रोच रही थी आपकी, यू बीइंग अ इन्वेस्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग सो टाइम? सो ऐसे ऐसे सिनारियो में आपने क्या करना चाहिए कि मतलब ये मेरा सेंटेंस नहीं है, किसी ग्रेट इन्वेस्टर का सेंटेंस है कि नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ टाइम इन द मार्केट। ओके। ये एक सेंटेंस को मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि मैं एज जी। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं बहुत छोटी इन्वेस्टर हूँ, तो हम्म। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द मार्केट समझ में आना ही नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। तो इट इज बेटर कि मैं हर एक फॉल पे मैं बाय करते रहूं। तो जब मार्केट 9,000 पे था तभी मैंने इन्वेस्ट किया है, 8,000 पे गया तभी मैंने इन्वेस्ट किया है, 7,500 पे गया तभी मैंने इन्वेस्ट किया है, आज मार्केट जिस लेवल पे है तभी भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। सो आप हर एक राइट लेवल पे राइट अगर राइट। इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपका एक एवरेज कॉस्ट जो बनेगा वो डेफिनेटली इतना अच्छा जरूर बन जाएगा कि आप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सही प्रॉफिट में रहोगे एंड आप उस पॉइंट पे एक अच्छा एग्जिट ले पाओगे। और मैम अभी जो ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, इस सिचुएशन में एग्जिट करते हैं या फिर स्टे इन्वेस्टेड? मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि यहाँ से भी मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। कितना जाएगा क्या जाएगा नो वन कैन से एज सच, बट उसके पीछे का थॉट प्रोसेस भी बता देती हूँ मैं कि क्यों मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर और जाएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि आज अगर जो डर है मन में लोगों के कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ गया तो क्या, तो अगर भी आ हम्म। जाता है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस तो भी वैक्सीन आने का तो स्ट्रांग न्यूज है अभी भी मार्केट में। तो राइट। एक डर को एक होप काउंटर कर रहा है, फिर मार रहा है, एक डर है एक होप है कि वैक्सीन आ जाएगा वो उसको मार गया है। अब सेकंड चीज ये है कि यूएस में जो अभी फाइनली अपने ट्रम्प साहब बाय बाय बोल दिए है कि अभी उनको लग रहा है कि चलो ठीक है बहुत हो गया अभी एग्जिट करेंगे, एंड जो हम्म। बाइडेन इज फाइनली गोइंग टू अज्यूम पावर। तो जो बाइडेन जब कुर्सी पे बैठेंगे प्रेसिडेंट के तब उनको कहीं ना कहीं वो कितने अच्छे हैं ये प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैकेजेस देने पड़ेंगे, अमेरिका की जनता के लिए रिलीफ पैकेजेस देने पड़ेंगे। तो जितना रिलीफ हम्म। पैकेजेस वो देते हैं तो उतना वो पैसा इकोनॉमी में पंप इन करेंगे, जितना राइट इकोनॉमी राइट। में और पैसा पंप इन होता है लोगों के पास और पैसा आ जाता है और लिक्विडिटी आ जाती है, जितनी देन दे लिक्विडिटी मार्केट में उतना कंज्यूम। मार्केट ऊपर ही जाना है, मार्केट ऊपर ही जाना हम्म। है उतना जितना लिक्विडिटी आएगा। और अपना 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 ये स्टॉक मार्केट ऐसा है कि उधर यूएस में कुछ अच्छा हो जाता है हम तुरंत उसको रिएक्ट कर देते हैं, तो उधर यूएस में मार्केट ऊपर गया इधर अपना भी मार्केट ऊपर जाएगा फिर। So unless and ओके। until something terrible news comes up, I feel
I don't see any reason why market should terribly fall right now. ओके ओके मैम, अभी बहुत सारे स्टॉक है जो रैली कर रहे हैं, इवन हमारा इंडेक्स भी रैली ही कर रहा है, बट डू यू बिल्कुल। मतलब ट्रेवल या टूरिज्म रिलेटेड जो हमारे कंपनीज इंडस्ट्री है, डू यू सी कि वो आगे वाले टाइम में डबल रैली करने वाला है? बिकॉज अभी धीरे धीरे तो टूरिज्म खुलेगा, अभी पूरा प्रॉपर खुला भी नहीं है, एंड देन ऑल्सो दे आर परफॉर्मिंग। बिल्कुल। सो अभी एकदम ट्रैवल टूरिज्म जैसा एक सिंपल आपको एग्जांपल बताऊं तो आईआरसीटीसी, हम्म। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे वाला अपना जो स्टॉक है, तो वो उन्होंने ओएफ ऑलमोस्ट, हाँ ओएफएस, करेक्ट करेक्ट, तो पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से वो एक ही प्राइस बैंड पे, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो बॉलिंजर बैंड नाम का एक टेक्निकल एनालिसिस का एक इंडिकेटर होता है, तो वो जी। ऐसा बिल्कुल एक रेंज बाउंड था आईआरसीटीसी का। फिर वो खबर आ गई कि यार ओएफएस आएगा, वो तुरंत शॉर्ट अप किया, तो वहां से वो सीधा गया 1800 तक। फिर जब धीरे धीरे और न्यूज फैलने लगे मार्केट में, आ रही तो नीचे की तरफ आईपीओ, नीचे की तरफ ओएफएस आएगा, तो और नीचे 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 आते आते अभी फिलहाल 1400 के रेंज में वापस से वो आ गया है। बट ये क्या है, मैं वही बोल रही हूँ, आज अगर भी ट्रेन ज्यादा नहीं चल रही है तो भी ये बहुत पागल जैसे गिरा नहीं है, इट इज स्टिल इन अ स्टेबलाइजिंग मोड। तो जब ये टूरिज्म रेलवे सब नॉर्मल रूटीन पे जब चालू हो जाएगा तो ये स्टॉक्स भागने ही भागने हैं। जिस रेट से ट्रेन भागेगा उतनी रेट से स्टॉक भी भागेगा। So you're saying it is very good option to buy these stocks right now, right? वो उन्हीं लोगों ने बाय करना चाहिए जिनके पास पेशेंस है। राइट राइट। अब मैम काफी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया में बैठ के बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर बाहर बैठ के दुबई है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं ऐसे कि वहां से वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? जनरली ये जो हम इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना या बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना जो होते हैं, वो एक नॉर्मल रूट के थ्रू जाता नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ तो मैं डायरेक्टली वहां पे एक डिमैट अकाउंट खोल दिया मैंने, और मैंने उधर के स्टॉक्स में डायरेक्टली बाइंग चालू किया, ये ऐसे नहीं होता है। तो आपको थ्रू म्यूचुअल फंड्स बाइंग करना होगा। सो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड में बाय करोगे, पराग पारेख तो अभी दुनिया जानती है उस म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मान के चलो जी। पराग पारेख के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ आई इनडायरेक्टली गेट टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। वैसे ही ओके बाहर के लोग जो रहेंगे उनको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो एफपीआई करके होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके जो आती है, तो दैट इज ऑल्सो वो एफपीआई रूट के थ्रू इंडिया में आता है पैसा। ओके डायरेक्ट बाहर का इंसान कोई तुरंत इधर डिमैट खोल दिया और चालू हो गए तो वैसे वैसे नहीं होता है। वो एफपीआई रूट अलग होता है, उसमें बहुत सारी उनको डॉक्यूमेंटेशन है, कई सारे नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन, ये सब करके फिर उनको यहाँ पे आना पड़ता है। ओके ओके। मैम, एज अ इन्वेस्टर आप किसको फॉलो करती है? देयर इज विजय केडिया सर है, वहां पर राकेश झुंझुनवाला है, डू यू मतलब डू यू फॉलो देम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस? एकदम मतलब आई डोंट नो, मतलब एकदम सही बताओ तो मैं इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ। ओके मतलब मैंने बुक्स पढ़े हैं काफी, बुक्स के हिसाब से मतलब एक आप बोलेंगे तो एक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग करके एक बुक है, वो बहुत सही है। आई थिंक वो एक फिलोसफी वाइज मुझे बहुत सही लगता है। क्योंकि ओके। कैसे मैं बताऊं कि आपको, आई टेक एग्जांपल ऑफ राकेश झुनझुनवाला, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, नो डाउट अबाउट दैट। बट ठीक है। कैसे होता है ना कि आज ये लेवल पे ये लोग पहुंच गए कि राकेश जी ने अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो वो इस न्यूज से ही वो स्टॉक भाग जाता है, और ये राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया, बढ़िया स्टॉक है, भागो भागो ले लो ले लो। मैनिपुलेट कोई करो। देख, करेक्ट, तो कोई देखेगा भी नहीं कि भाई क्या करता है स्टॉक क्या नहीं करता है। अभी राकेश झुनझुनवाला हिमसेल्फ had invested in yes bank when it was around 60, तो राइट कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया इन यस बैंक एट 60 जस्ट बिकॉज राकेश जी हैड इन्वेस्टेड एट 60। अब बाकी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ये नहीं देखेंगे कि उनके पास इतना पैसा है, उसमें से अगर वो थोड़ा बहुत पैसा गवा भी देंगे तो उनको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर रिटेल इंडिविजुअल राइट। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अरे राकेश जी ने इन्वेस्ट किया तो मेरे पास जितना पैसा सब डाल दो इस बैंक में, ये गलती हम कर बैठेंगे। प्रॉपर्टी बेच दो। तो व्हाट आई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो व्हाट आई फील इज डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। ये आप देखो कि भले ही आप बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, तो वो उनके पोर्टफोलियो का कितना सा पैसा, कितना सा साइज वो एक उस कंपनी में डाल रहे हैं, वो देखो आप। ओके सो राइट। एंड वन मोर थिंग, आज मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और राकेश झुनझुनवाला जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को कंपेयर कर ही नहीं सकते कोई। उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आज उनको 2 लाख 10 लाख रुपए गए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरे 10 लाख रुपए डूब गए तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी।
तो ऐसे इसीलिए मैं इन बड़े लोगों को किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, फॉर द सेम रीजन आई डोंट थिंक देयर रिस्क प्रोफाइल एंड माय रिस्क प्रोफाइल मैचेस. ओके दैट इज द मैम, रीजन व्हाई अभी आई डोंट फॉलो. स्कैम स्कैम 1992 सीरीज आई थी, तो उसके बाद यंगस्टर्स में कुछ अलग ही क्रेज है। किसी भी टाइप की स्टॉक हाँ, मार्केट की वीडियो होती है, अभी भी कमेंट से बहुत सारा हर्षद मेहता आ रहा है। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? बस ज्यादा इंस्पायर मत होना इस स्टोरी से. क्योंकि आई टेल यू, वो जमाना एक था कि जहाँ पे सेबी जैसा जो रेगुलेटर है वो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इसीलिए मार्केट्स को राइट। मैनिपुलेट करना बहुत मतलब कंपैरेटिवली इजी था. आज मार्केट्स को इतना मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं रहा है, क्योंकि सेबी काफी एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव रेगुलेटरी है। अथॉरिटी है, एक्टिव है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होता होगा, इम्पॉसिबल ही है, बड़े बड़े लेवल तक हमको पता नहीं होती है चीजें, होता भी होगा शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई डोंट थिंक कि मूवी में जितना बताया वो हद का नहीं होता होगा आज, क्योंकि सेबी आज प्लेस में. एंड इनफैक्ट हर्षद मेहता वाज द पर्सन बिकॉज ऑफ विच सेबी केम इनटू बीइंग. क्योंकि हर्षद मेहता का स्कैम 91 में हुआ था, 92 में सेबी आया, तो सेबी आने की वजह ही राइट। हर्षद मेहता थी. तो इसीलिए आज अगर कोई हर्षद मेहता से इंस्पायर होकर बोले यार हम भी ऐसे कुछ करेंगे, रिस्क है तो इसके है, तो अभी रिस्क है तो जेल है, बाकी कुछ नहीं है अभी. राइट। मैम, अभी आपने एक बुक बताई थी, अभी और जो हमारे बिगनर्स के लिए, उनके लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं आप? बिल्कुल. मैंने अभी जो बोली थी दैट वाज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग. सेकेंड वन एक रोमांसिंग द बैलेंस शीट करके बहुत सही बुक है. मिस्टर अनिल, सेकेंड नेम मैं भूल गई, मिस्टर अनिल, अनिल जी फर्स्ट नेम है उनका, तो उन्होंने ओके। एक लिखी हुई बुक है ये रोमांसिंग द बैलेंस शीट, बहुत सही बुक है. और एक धंधो इन्वेस्टर करके एक बुक है, वो भी एक अच्छी बुक है. तो इसीलिए मैंने ऐसे मतलब कई सारे लोग, या फिर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके अच्छी है, बट आई टेल यू हाँ हाँ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझने के लिए ना थोड़ा आपका नॉलेज होना जरूरी है, वो समझ में नहीं आएगा. यस, अनिल लांबा, समवन सेड इट, यस अनिल लांबा ही है, यस। जो रोमांसिंग द बैलेंस शीट है. तो ये क्या बोल रही थी मैं अभी, अभी जो मैं बुक बोल रही थी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इंटेलि इन्वेस्टर, सही है. तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है सही, लेकिन थोड़ा हाई लेवल में लिखा हुआ है ये, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी जिनको बेसिक्स नहीं पता है. तो ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार आता है मुझे कि मैम बुक्स बताओ, बुक्स कौन से बताओ। बुक्स इन्वेस्ट करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं बुक्स को. तो इवन रिच डैड पुअर डैड भी अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट. तो मैंने क्या किया, अगेन सेम थिंग, मैंने मेरी वेबसाइट जो है rachanaranade.com, उस पे मैंने बुक्स नाम का अलग टैब ही डाल दिया है. तो आप ओके। बुक्स के टैब पे क्लिक करोगे तो उधर जितने भी मुझे अच्छी लगती है बुक्स, मैंने 9 बुक्स उधर लिस्ट किए, सब अमेजोन के लिंक्स के साथ ही दिए कि आप फाइनली अमेजोन से ही ले लोगे, परचेज कर सकते तो हैं। वो परचेस अमेजोन से ही डायरेक्टली कर सकते हैं. बट ये जी सिर्फ जी। 9 का एक लिस्टिंग मेरे वेबसाइट पे दिया है. तो वो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, और कौन कौन से अच्छे हैं. ओके मैम। मैम, अभी लाइक हमें नॉलेज हो गई है स्टॉक मार्केट की, देन हमने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी है। अब हम क्या सोच यस. रहे हैं कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके फुल टाइम। तो फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या फैक्टर्स अपने माइंड में रखने चाहिए, एंड क्या मिस्टेक्स होती है फुल टाइम ट्रेडिंग करने में? जनरली लोग एडवाइस तो नहीं करते, बट आई गेट अ लॉट ऑफ हाँ. कमेंट्स फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग। मैं खुद पर्सनली इस चीज की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ. तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस एज वेल, क्योंकि मैंने कभी ओके। फुल टाइम ट्रेडिंग एज एज अ प्रोफेशन मैंने खुद ने भी कभी देखा नहीं है. क्योंकि क्या होता है पता है क्या, स्टॉक मार्केट में आपको कैपिटल अगर बहुत है ना आपके पास तो मजा है, बट अगर आप बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ उतर रहे हो, वो भी फुल टाइम ट्रेडिंग आप करना चाह रहे हो, तो इसमें ट्रिमेंडस रिस्क इन्वॉल्व है. आप हर एक बार प्रॉफिटेबल पोजीशन में ही निकलोगे, ये सही नहीं होगा. अच्छा, बाय द वे सम पीपल आर राइटिंग रॉन्ग वेबसाइट नेम, तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, इंटरप्ट माई सेल्फ. इट इज rachanaranade.com. कई लोग रचना पढ़ के .com बोल रहे हैं, rachanaranade.com ओके। नाम की वेबसाइट है. हाँ. अच्छा, सो तो गोइंग बैक, ट्रेडिंग अगर आपको फुल टाइम करना है तो मैं बोलूंगी कि आपको एक देयर समथिंग नोन एज, यू शुड बी एबल टू साइज योर ट्रेड वेरी प्रॉपरली. मतलब क्या, आप एक ही ट्रेड में 2 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया आप अचानक से, क्योंकि मुझे लगता है अरे पक्का ये तो जाएगा ही जाएगा, और 2 लाख रुपए का आपने ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड गलत गया, तो आप एट वन शॉट बहुत ज्यादा पैसा आप वेस्ट कर देते हो. सो आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत ध्यान में रखना जरूरी है. नंबर वन, यू शुड बी एबल टू साइज योर सिंगल ट्रेड वेरी वाइजली. साइजिंग ऑफ द ट्रेड बोलते हैं कि आपने एक ट्रेड कितने रुपए का लगाना चाहिए, तो वो पोजीशन। बहुत, पोजीशन कितना बड़ा होना चाहिए, अपने बहुत जेन्युइनली करना चाहिए. नंबर टू इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो.
जब भी आप एक सिंगल ट्रेड लेते हो तो आपने पहले ही करना चाहिए कि अगर आप स्टॉप लॉस जो हम बोलते हैं नीचे की तरफ, तो राइट वो राइट। रिस्क कितना आप लेने लॉस के लिए कितना रेडी हो, और बिल्कुल लॉस कितना हो सकता है, और अपर साइड पे टारगेट कितना होना चाहिए आपका, दैट इज योर रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखना चाहिए। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं होता, मतलब रिस्क मैक्सिमम 1 का होना चाहिए, रिवॉर्ड 2 का होना चाहिए कम से कम। तो अगर जब तक ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं होता है, तब तक आपने इस पोजीशन में एंटर ही नहीं करना चाहिए आइडियली। राइट राइट राइट। अगर आप ये 2 थंब रूल्स फॉलो करते हो तो आप काफी देर तक मार्केट में टिके रह ट्रेडिंग में। सकते हो, अगर मैम ट्रेडिंग हम में टिके रह सकते इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिया है 5-6 कंपनीज में, तो हमें कब कितना टाइम दिन में देना चाहिए, या फिर मंथली चेक करना चाहिए, वीकली चेक करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो? व्हाट डू यू सजेस्ट? हो। मैं तो बोलती हूँ कि एक मंथली पोर्टफोलियो चेक तो होना ही होना चाहिए। ओके। आप सेम चीज है, आप आपका हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो उसमें, तो मंथली आप हम्म। अगर 1 घंटा भी अगर आप नहीं दे रहे हो तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अच्छा लगता है कभी कभी देख के कि हमने इन्वेस्ट किया है, अरे वाह ये 5% ऊपर है स्टॉक, इससे भी मजा आ जाता है। वो एक नॉर्मल आप मतलब उस शेयर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक न्यूज आई है क्या, कुछ हुआ है क्या, जैसे अभी अभी हमने बात की अबाउट आईआरसीटीसी, कि यार आईआरसीटीसी क्यों गिरा, मुझे एटलीस्ट जो मैं एक मान के चलो 10 कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है, तो उस कंपनी में क्या हो रहा है ये मुझे पता होना हम्म। चाहिए। एंड राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, उसके जो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, विदाउट फेल आपने उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखने ही देखने। तो क्वार्टरली रिजल्ट राइट। से आपको पता चलेगा कि कैसे एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं है, क्या है। इतना तो आपको एक ट्रैक रखना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ओके। एंड मैम कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं मनी मार्केट में, तो विच वन इज बेटर, स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट? आई एम अ फैन ऑफ स्टॉक मार्केट रादर देन मनी मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा है, इज व्हाट आई बिलीव फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो बट वॉल्यूम आई थिंक मेरा मनी पर्सनल मार्केट में चॉइस ज्यादा स्टॉक मार्केट है। हाँ, बट एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा मनी मार्केट में जाके। है। राइट राइट। बड़े यू मीन टू से कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए मनी मार्केट ठीक है, छोटे अच्छा रिटेल अच्छा। इंडिविजुअल के लिए मनी मार्केट कुछ काम का नहीं है ज्यादा। ओके ओके ओके। तो उसमें जैसे हम यहाँ स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट पे, इवन आई डोंट नो मच अबाउट मनी मार्केट आल्सो, जिस तरीके से हम हम्म। स्टॉक मार्केट में स्टडी करते हैं, तो उसमें भी क्या इसी लेवल की स्टडी होती है, कम होती है मनी हाँ मार्केट बिल्कुल, में? स्टडी तो उसी लेवल की होगी मनी मार्केट में। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि कमर्शियल पेपर्स है, कॉर्पोरेट हम्म डिपॉजिट्स है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मनी मार्केट में भी। बट वही प्रॉब्लम है कि आज अपने पास इतनी ताकत नहीं होती कि मनी मार्केट से कुछ इंस्ट्रूमेंट सीधा उठा ले। सो अगर भी आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो भी 99% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वुड इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स ओनली। तो कई राइट सारे राइट राइट। म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं कि जो आपका पैसा फाइनली मनी मार्केट्स में ही पार्क करेंगे, बट थ्रू म्यूचुअल फंड्स पार्क करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, तो ओके। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको क्रेज है ही, आपको मतलब किसी को भी क्रेज है ही है कि यार मनी मार्केट में तो पैसा डालना चाहिए भाई, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। एंड जो बिगनर्स होते हैं, या फिर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हम कैसे चूज करें मैम? जी, तो म्यूचुअल फंड जब आप चूज कर रहे हो तो उसमें दो तीन मतलब अगेन कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट दो तीन पैरामीटर्स तो आप पढ़ के देखने चाहिए। कि जैसे सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि इसका एयूएम कितना है। एयूएम इज राइट। योर एसेट अंडर मैनेजमेंट। अभी इसके लिए मैं मतलब कितना बड़ा साइज है म्यूचुअल फंड का, वो एक अंदाजा देता है अपने को एयूएम। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि जब मान के चलो आप कहीं ट्रिप पे गए हो दोस्तों के साथ, आप जी। हाईवे पे हो, गाड़ी में हो, भूख लगी है, लंच टाइम का समय है, और आप देख रहे हो यार कौन से होटल के यहाँ पे गाड़ी रुके अपनी। जी। तो आप एक क्या पैरामीटर लेते हो बिफोर स्टॉपिंग योर कार आउटसाइड एनी होटल, तो हम देखते हैं यार कितना कहाँ पे शेयर ज्यादा आएगा? गाड़ियां है, कितना ओके। कौन से होटल के बाहर कितनी ज्यादा गाड़ियां है। जिस होटल के बाहर ज्यादा गाड़ियां दिखेंगी तो हम बोलते हैं यार यहाँ पे बहुत लोग रुक रहे हैं, तो इसमें शायद खाना अच्छा मिलेगा अपने को। ये राइट जनरल राइट। थॉट प्रोसेस होती है लोगों की। वैसे ही आप इमेजिन करो कि म्यूचुअल फंड की हाईवे पे दुकानें लगी हुई है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ होटल्स म्यूचुअल फंड की दुकानें लगी हुई है, सब विजुअलाइज कर सकते हो हाईवे पे। और आप देख रहे हो कहाँ पे गाड़ियां ज्यादा है, और जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा है वहां पे लोगों का भरोसा ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा अपना पैसा डाल रहे हैं। सो जहाँ गाड़ियां ज्यादा है इज इक्वल टू उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, इज हाउ आई ट्राई टू पुट इट अप। सो जितना राइट। एयूएम ज्यादा है उतना ही लोगों का भरोसा उस पर ज्यादा है। तो आप डेफिनेटली ऐसे एक पहला पैरामीटर हो सकता है कि ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जहाँ पे एयूएम बहुत कम ना हो, एयूएम काफी अच्छा खासा होना चाहिए आपका। सेकंड चीज आप देख सकते हो उनके पास्ट रिटर्न्स कैसे हैं। तो आप लास्ट 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, ये सब आप देख सकते हो। आप इनका बीटा क्या है देख सकते हो।
बीटा इज सेंसिटिविटी बेसिकली। बीटा आप देख सकते हो, आप शार्पे रेशियो देख सकते हो। ये अभी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हो गई, ये समझना होगा लोगों को। तो ये सभी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है। यस। इट्स नॉट माय वेबसाइट, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके एक अलग वेबसाइट है, दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवन कैन गो देयर एंड चेक आउट दिस पैरामीटर्स। ये सभी पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो क्या क्या हर एक म्यूचुअल फंड के लिए है, सॉर्ट कर सकते हो आप। तो उसके हिसाब से आप एक फाइनल आपका एक डिसीजन ले सकते हो फिर। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप एयूएम की बात कर रहे हो तो मिनिमम कितना नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसे मिनिमम बेंचमार्क ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ जनरली, लेटर से अगर मैं ब्लू चिप बोल रही हूँ तो ब्लू चिप में मैं देखती हूँ कि टॉप 3 लोगों का कितना है। तो टॉप 3 जितने जो कोई भी म्यूचुअल फंड है उसके कंपैरिजन में लेटर से 1/10 पे ये है जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। तो ये तो ओके। बहुत ही नीचे गया यार, इतना नीचे नहीं हो सकता है। अगर लेटर से ये 100 के लेवल पे, टॉप 3 ऑन एन एवरेज 100 के लेवल पे और ये 70-80 के आसपास है, तो मैं बोलूंगी चलो ठीक है, नॉट एन इशू। बट टॉप 3 100 के आसपास है और ये 10-20 के आसपास है जो मैं ट्रैक करना चाह रही हूँ, तो मैं बोलूंगी ये बहुत ही छोटा है, इसमें अभी तक उतना विश्वास नहीं बना इन्वेस्टर्स का। तो इसलिए आई विल वेट एंड वॉच फॉर द रिटर्न्स, देन गोइंग अहेड आई माइट इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड इफ इट शोज अ गुड परफॉर्मेंस। ओके। अगेन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मैम कि फॉरेन कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो हाउ डू बिल्कुल। वी चूज तो चूज अगर कैसे आपको करें? फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही करना है तो एक्चुअली मैंने लास्ट वेडनेसडे एक वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हाउ टू जी। इन्वेस्ट इंटरनेशनली, सेम टॉपिक, क्योंकि यही एक बहुत क्रेज रहता है बहुत ज्यादा, आजकल हाँ। बच्चों में कि क्योंकि टेस्ला और मत बहुत सारी कंपनीज अब न्यूज में रहती है एंड क्रेज है, बहुत ज्यादा लोगों को अपडेट रहते हैं उन कंपनीज के बारे में एंड देन दे थिंक कि इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैं आपको ट्रू बात बताऊंगी। अभी मेरे कई सारे फ्रेंड्स जैसे कि जो यूएस में हैं, वो इधर इन्वेस्ट करने के लिए मरते हैं। वो बोलते हैं कि यार इंडिया जैसा कोई अच्छा। मार्केट है नहीं। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतने टैलेंट भरा पड़ा है, इट इज जस्ट अबाउट कब राइट एंड अपॉर्चुनिटी आए, कब कब ये चल पड़े मार्केट। तो वो लोग है जो डेवलपिंग। इधर इन्वेस्ट करने के लिए मर रहे हैं, और हम एक लोग है कि उधर जाके इन्वेस्ट करने के लिए मर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि जरूरी नहीं कि हर बार अपने इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना ही चाहिए। बट चलो फिर भी अगर आपको उतना क्रेज है ही है तो आप आइदर एफओएफ विच इज लाइक फंड ऑफ फंड के थ्रू इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज समथिंग नोन एज अ फीडर फंड, फीडर फंड के भी थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ईटीएफ उधर के इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, मैंने बोला ऐसे। अभी लास्ट वेडनेसडे ही मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो डेफिनेटली बच्चे जाके वहां पे देख सकते हैं क्या अलग अलग 4 तरीके हैं वहां पे जाके इन्वेस्ट करने के। ओके। एंड मैम क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, बहुत सारी चीजें और भी होती है जो बहुत ही ज्यादा तो उन उनको आप मुझे नहीं एडवाइस कर समझ दो में कि आती है वो अभी तक। मैं अभी पढ़ रही हूँ इसके बारे में। लेटेस्ट सी अगले महीने मुझे मतलब सबने मुझे टारगेट दिया था कि मैम ये साल के आसपास, आइदर ये ईयर एंड या फिर अगले ईयर के बिगिनिंग में कुछ ना कुछ तो क्रिप्टो के बारे में आप प्लीज हमको एक एक तो एटलीस्ट आप हमको एक बेसिक्स, व्हाट इज क्रिप्टो, दिस दैट, कुछ तो बताओ। तो अभी तक स्टिल मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने क्रिप्टो में आज तक एक भी रुपया नहीं, पैसा मेरा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है, मैं उसी में इन्वेस्ट करती हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो मुझे समझ राइट में ही नहीं राइट। आता तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं मैं। तो बिल्कुल मैम। फिलहाल पढ़ रही हूँ, लेट अस सी बाय नेक्स्ट मंथ एंड। प्लान तो है यार कुछ बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं बस इसी के ऊपर। राइट मैम। एंड मैम एज अ इन्वेस्टर आपने कभी कोई स्टॉक को एग्जिट किया है या अभी तक आप ऐड करते जा रहे हैं बस? नहीं नहीं नहीं, एग्जिट करना तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप मैं जनरली क्या करती हूँ बताती हूँ। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करती हूँ और उसकी एक टारगेट प्राइस निकालती हूँ मैं। टारगेट प्राइस जी। निकालने के लिए आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं वैल्यूएशन करने के लिए। तो जैसे मैं 4 वैल्यूएशन मेथड्स तो मैं करती ही करती हूँ। मैं पीई से वैल्यूएशन निकालती हूँ, देन मैं पी टू बी से वैल्यूएशन निकालती हूँ, मैं प्राइस टू सेल से वैल्यूएशन निकालती हूँ, और मैं ईवी इबिडा। ये 4 मेरे मतलब हमेशा मैं ये 4 मेथड्स यूज करके एक एक ऑन एन एवरेज इसका 1 साल के बाद टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, ये मैं जी। मेरे वैल्यूएशन से निकालती हूँ। एंड अगर वो मीट हो जाता है देन आई सेल ऑफ दीज शेयर्स। तो मैं ऐसे अब जानबूझ के मतलब रखना है बोल के नहीं उसमें रख देती हूँ। मेरा टारगेट मीट हो गया, मैं सेल ऑफ भी कर दूंगी उसको। ओके ओके। जैसे अगर हम टारगेट लेने लगे 3 इयर्स 5 इयर्स और 1 साल, तो विच वन इज बेटर कि हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए या थोड़ा सा आसपास का सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर? मैं हमेशा क्या बोलती हूँ पता है क्या, इन्वेस्ट आप जब करते हो ना तो
ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पैसा है इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया, ये गलत सोच होती है। आप सबसे जी पहले सोचो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। सो स्टेप नंबर 1 इज गोल सेटिंग, एंड बेस्ड ऑन द गोल यू शुड इन्वेस्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा भी है सेकंड स्टैंडर्ड में, तो जी अगर मुझे लगता है कि मेरा बेटा जब 12th स्टैंडर्ड में जाएगा तब मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए उसके हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए मैं मेरा एक फंड रेडी कर रही हूँ, एंड उसके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करके उसमें पैसा एसआईपी, मेरा खुद का एसआईपी लगा दिया। लेट अस से 5 स्टॉक चूज किए, हर महीने मैंने एक एक स्टॉक इन 5 स्टॉक्स में ऐड करना चालू कर दिया। अब भले ही जी 1 साल में मेरा टारगेट मीट हो जाता है, मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरा गोल क्या है, मेरे बेटे का हायर एजुकेशन है। तो इसीलिए मैं तब तक उसमें इन्वेस्ट करते रहूंगी जब तक वो मेरा गोल के नजदीक नहीं पहुंच जाता है। सो लोग इधर ही गलती कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे निकालो कि नहीं, निकालो कि नहीं, अरे रुको, तुम्हारा गोल क्या है वो पहले डिफाइन करो। गोल क्योंकि मीट हो एक्चुअली गया, पता ही नहीं टारगेट होता मीट हो एग्जिट गया, तो कब करना निकालो। है। हम्म। एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रही हूँ कि फर्स्ट इज सेट द गोल, सेकंड सेट द टारगेट। सो अभी मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलो मेरा गोल है मेरा बेटे का हायर एजुकेशन, एंड मुझे उसके लिए 1 CR चाहिए, ठीक है। जी अब मेरा बेटा जब 8th स्टैंडर्ड में तभी ये 1 CR हिट कर लिया मान के चलो। अब मैं क्या, आइडियली मैंने क्या करना चाहिए, फिर मैंने वो पूरा पैसा इक्विटी से विड्रॉ करना चाहिए, जी और फिर मैंने उसको एफडी में रखना चाहिए। ऐसा ओके क्यों, क्योंकि नाउ यू कैन इमेजिन कि 8वीं तक तो ये बहुत सही चला, और जब लास्ट 3-4 साल जब ये उसका क्रीम एकदम लास्ट थोड़ा सा बचा है तब मार्केट गिर गया। तो मेरी राइट 8 साल की डिसिप्लिन वेस्ट हो गई लास्ट के 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जब भी आपका टारगेट नजदीक आ रहा है, मतलब आपका गोल नजदीक आ रहा है, आपका टारगेट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हिट हो चुका है या फिर हो भी गया है, तो आप इक्विटी से पैसा निकालोगे और उसको सेफ रखोगे, तो आपको श्योरिटी भी है कि जब मुझे पैसा चाहिए तब मेरे पास मेरा पैसा है। ओके मैम, अभी मैंने बताया जैसे कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, और अभी क्या ये राइट टाइम है एंटर करने का? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला इसे आप उल्टा, मैं आपको थोड़ा सा और एक अलग क्वेश्चन पूछती हूँ। आप एक 1.5 महीना पीछे जाइए टाइम मशीन जी के थ्रू, हाँ, 1.5 महीना पीछे चल रहा है, तब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे था ऑलमोस्ट, मतलब एटलीस्ट प्री कोविड लेवल पे था। जी तो मैं बोलती थी मैडम, अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैडम देखो प्री कोविड लेवल तक आ भी गया है, अब आप हम्म इन्वेस्ट करोगे, तो आप बोलते थे अरे बाप रे प्री कोविड लेवल पे आ भी गया, अभी शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, मैं तो इन्वेस्ट अभी नहीं करूंगी। उसके बाद भी 1000 पॉइंट का अच्छा रैली हो गया ना रफली। हो तो गया है, हाँ। तो हम, हाँ तो हो तो गया है, तो यहाँ से भी और क्यों नहीं जाएगा 1000 पॉइंट ऊपर। तो आप इन्वेस्ट अगर भी इस टाइम पे करना चाहते हो ना, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आप इन्वेस्ट करोगे तो एक साथ इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। आपको आज के ओके लेवल पे भी इन्वेस्ट करना है ना, तो आपके पास मान के चलो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका 1/5 जी इज माई थंब रूल। हमेशा मेरा थंब रूल रहता है 1/5 ऑफ इन्वेस्टमेंट एट वन शॉट। 10,000 रुपया है आपके पास, तो आप 2,000 ही आज इन्वेस्ट करो, और ऊपर जाता है मार्केट आप और 1,000 डाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो रियलाइज होता जाएगा, अरे बाप रे ये तो अभी कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन दिखा रहा है, एफआईआई वाले पैसा निकालना चालू कर दिए, ओवरबॉट सब बोल रहे हैं। उस टाइम पे रुको, फिर जब मार्केट नीचे गिर जाता है और 2,000 डालो, और नीचे गिर जाता है आगे का 2,000 डालो, और नीचे गिर जाता है आगे का 2,000 डालो। सो दैट्स द वे यू ट्राई टू एवरेज इट आउट। सो आज के लेवल पे भी मैं, एम आई इन्वेस्टिंग, यस आई एम इन्वेस्टिंग इवन एट टूडेज लेवल। ओके मैम, सजेशंस हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, फ्रेंड्स दे देते हैं, न्यूज चैनल्स दे देते हैं, एंड देन यूट्यूबर्स दे देते हैं। तो हमें किसके सजेशंस लेने चाहिए और किसके नहीं लेने चाहिए, सिर्फ क्योंकि सिर्फ एक इंसान एक्चुअली में के, हम सिर्फ ढूंढ एक रहे होते इंसान हैं के लेने सजेशन। चाहिए, एक इंसान के सजेशन लेने चाहिए, एंड वो है जी खुद के। राइट, वो हम एनालिसिस बोलते हैं ना, करके। सुनो सुनो क्या, देयर इज समथिंग हम बोलते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, ऐसे करो ऐसे कुछ अपनी। तो एक कहावत है शायद। हाँ तो जी बस वैसे होता है, मैं बोलूंगी यूट्यूबर से सजेशन ले लो, हम्म। न्यूज चैनल से सजेशन ले लो, इंस्टा ब्लॉगर से सजेशन, सब सजेशन सबसे ले लो आप, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है बट ठीक है। फाइनल इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए यार मैंने भी मेरा इसमें रिसर्च किया है, हम्म। मुझे खुद को लगता है कि ये अच्छा जाएगा इसीलिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ना कि रचना बोल रही है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो जब मुझे उसका, एज एन इन्वेस्टर मुझे पता है कि ठीक है चलो मैंने सुन तो सबके लिए, अभी इनमें से मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया, मुझे लग रहा है ये सब ठीक लग रहा है अभी, देन आई विल इन्वेस्ट। तो एक एक इंसान का होना चाहिए खुद का। एंड मैम, आप आईपीओ के लिए बहुत सारे रिव्यूज एंड एनालिसिस अपलोड करते हैं, तो जी, आईपीओ क्या इस टाइम पे जितनी आईपीओज आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो इज इट गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन आईपीओज आल्सो? आईपीओ में इन्वेस्ट करना को बिल्कुल 100% सही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आईपीओ अच्छा है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करो।
अभी प्रॉब्लम आजकल यही हो रहा है कि इतना इतना ज्यादा ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का कि अलॉटमेंट हम्म। तो मिलना सबसे बड़ी मुश्किल बात हो रही है। मन्नत मांगनी पड़ती है, यार मुझे अलॉटमेंट मिल जाए तो मजा आएगा करके। तो मैंने मेरा इंस्टा रील भी डाला था, कभी खुशी कभी गम वाला। मैंने बर्गर मैंने किंग। इन्वेस्ट किया था। हाँ, बर्गर किंग, बस मैंने किया था, मेरे हस्बैंड ने भी किया था। मुझे एक भी नहीं मिला, जी। मेरे हस्बैंड को मिल गया। तो बस ऐसे ही होता है जर्नी। बट ये मेरे एक भाई को मिल सबसे गया बढ़िया था। बात होती है। हाँ, तो वही होता है कि आप ऐसे करो एटलीस्ट कि एक ही डीमैट अकाउंट से मत डालना, आप आपके डीमैट हाँ अकाउंट से हाँ। अप्लाई करो। आपके बेटर हाफ के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो, मम्मी का डीमैट, पापा का डीमैट, सबके डीमैट अकाउंट खुलवा दो। अगर भी हम्म। किसी भी एक आईपीओ अगर आपको लग जाता है और अच्छा बम्पर रिटर्न लेके जाता है, तो बस पांचों की डीमैट अकाउंट का कॉस्ट जो होगा आपका ईयरली कॉस्ट, बस वो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ओके। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं कि जैसे ट्रेडिंग में बहुत ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, फिर भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला अभी भी क्वेश्चन आ रहा है ट्रेडिंग का। तो बोलते हैं कि कसिनो की तरह है, गैम्बलिंग की तरह है, तो एक्चुअली में क्या ट्रेडिंग उसी की तरह है? ट्रेडिंग तो आई मीन आई शुड नॉट बी रियली कमेंटिंग ऑन दैट, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद कभी ज्यादा ट्रेड नहीं करी हूँ। तो ऐसे होता है ना कि मैं जिस रास्ते पे चले ही नहीं हूँ, तो मैं बोल रही हूँ यार ये रास्ता ठीक नहीं है। तो जी। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा कमेंट करना मैंने ठीक नहीं, बट टू व्हाट आई हैव गॉट टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करे, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते भी है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फिर सेकंड ट्रेड लेते हैं, पैसा कमाएंगे, थर्ड ट्रेड लेते हैं, पैसा कमाते हैं, 10 ट्रेड हो गए, पैसा कमाया। अब उनमें कॉन्फिडेंस आ हम्म जाता है, भाई मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। अब वो उनकी लॉट साइज हम्म। बढ़ाते जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है अभी। अब एक एक ट्रेड ऐसे जाएगा कि जो आपका पूरा पैसा जो आज तक आपने पूरा गेन किया है, वो पूरा धुल जाएगा वन शॉट में। तो यहाँ पे हो जाती है गड़बड़ ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में कैसे होता है, राइट। आप एक ये चीज इन्वेस्टमेंट में जनरली नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको अगर मार्केट में आना है तो आप इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग मत करो। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तभी मैं इसको बोलूंगी, फिर इन्वेस्टमेंट तो गैम्बल है ही नहीं। आई कैन से दैट कॉन्फिडेंटली। ओके। मैम अभी जैसे कि लॉकडाउन के वक्त ये कोविड की वजह से हॉस्पिटल हो या फिर सैनिटाइजेशन इंडस्ट्री हो, ये बहुत ज्यादा बूम कर गई थी। तो अभी इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री अभी अभी इतना बूम नहीं कर रही है एंड देन करने वाली है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडस्ट्री हो सकती है, कि जो ओके। अभी तक ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, आगे जाके परफॉर्म करेगा। टिपिकली देखो आप, अगर आप देख करंटली आप हाईवेज है, रेलवेज है, या फिर जी। एयरपोर्ट्स है, इन सब के ऊपर काम थोड़ा अभी भी पेस एट विच इट इज गोइंग अहेड थोड़ा ठप है। तो हम्म। आप डेफिनेटली एल एन टी जैसा कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम बहुत तगड़ा है, ये आगे जाके थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एलाइड चीजें जो है, जैसे आप पॉलीकैब जैसा शेयर है जो केबल्स वायर्स में ज्यादा है, तो जो वो भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया अभी तक, लेकिन दैट कैन बी द अपकमिंग थिंग, क्योंकि इंफ्रा है और एलाइड टू इंफ्रा है। ये सभी सेक्टर्स इसके आगे जाके थोड़ा बहुत परफॉर्म करने की उम्मीद मुझे तो है। ओके ओके। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप पहले चार्टर्ड बने थे जी, या पहले अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी? तो मैंने 2006 में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी मेरी, जब मैं सीए फाइनल में थी। और जी। तब मेरा जो बॉयफ्रेंड था, जो आज मेरा हस्बैंड है थैंकफुली, तो वाओ। वो पहले वो पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। जब भी आप ऐसे इमेजिन करो, जब भी कपल्स मिल रहे हैं तो कुछ प्यारी प्यारी बातें होती है। तो वो हम दोनों जब मिलते थे तो वो बोलता था आज मार्केट देखा क्या, मार्केट ऊपर गया, आज ये शेयर नीचे गया। अच्छा। तो हम बोलते थे हे भगवान, ये जब आएगा तो वही मार्केट मार्केट बोलता है। तो इधर मेरा हम्म। बॉयफ्रेंड, घर जाऊंगी तो मेरे भैया भैया सीए थे तब तक बने हुए, तो घर पे स्टॉक अच्छा। मार्केट भैया बात कर रहे हैं, इधर इससे अब मिलने जा रही हूँ, वो स्टॉक मार्केट। तो मेरा सैंडविच हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता। तो मैं बोलूंगी, मैं फिर बोली चलो अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, नाउ इवन आई शुड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। तो अच्छा। इसीलिए मैंने दैट दैट वाज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड टू इवन चेक आउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये कैसे होता है, क्या होता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा हम्म। बहुत गलतियां कर करके फिर मैंने एक डीमैट अकाउंट खोला था। एंड वहां पे मैं, मतलब एक ऑफिस, एक फिजिकल ऑफिस जहाँ पे मैं सीए फाइनल की क्लासेस के लिए जाती थी, जी उसी जी। सेम कॉम्प्लेक्स में एक ब्रोकर का ऑफिस था। तो वहां पे मैं जाके हम्म। रोज डब्बा खाती थी, मेरा ब्रेकफास्ट का डब्बा उधर जाके खाती थी मैं। तो वहां पे एक हाँ। 8-10 अंकल होते थे, तो जो रोज ट्रेड लेने के लिए आते थे, तो उनके लिए तो मैं उनकी पोती जैसी थी। तो वो मुझे बताते ओ। थे देखो बेटे ऐसे होता है, वैसे होता है।
तो उनसे भी काफी सीखा मैंने। फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू किया, फिर सीएनबीसी देखना चालू किया। तो ये धीरे धीरे कर करके, ओके बहुत गलतियां कर करके, शुरुआत में जो सब लोग शुरुआत में गलतियां करती है, सस्ता शेयर है तो जी। ऊपर जाएगा, सस्ता है इसीलिए ले लिया, बाकी कुछ फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब देख के ऐसे पागल जैसे लॉसेस कर करके फिर सीखी हूँ आज की क्या नहीं करना चाहिए। ये तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ अभी। ओके एंड मैम लेक्चरर का कब स्टार्ट किया आपने, यूट्यूब या फिर लेक्चरर की जर्नी? 2009 मेरा सीए हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हो गया था मेरा। तो उसके बाद मेरे कई सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे यार एमएनसी ज्वाइन कर लो, बिग फोर सीए फर्म्स ज्वाइन कर लो। तो हम्म। मैंने कहा यार नहीं, हम्म। मजा नहीं आएगा मुझे, मुझे टीचिंग करना है मुझे। तो पहले से ही शौक था ओके। टीचर बनने का। एक्चुअली मेरी मॉम टीचर है, तो ऐसे शायद वो पहले से ही, वो हम बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट रहता है यार, मॉम टीचर है, मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो बहुत पहले से था कि यार टीचर तो बनना ही बनना। इसीलिए मैं इनफैक्ट आर्ट्स लेने वाली थी, मम्मी पापा ने आर्ट्स लेने अच्छा। नहीं दिया तो कॉमर्स में गई, फिर ऐसे हो गया। तो बट फिर सीए बनने के बाद भी तो भूत तो वही सवार था यार, टीचिंग ही करना है कुछ भी जाके। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई तो कर लेते हैं कैसे वर्कआउट होता है। तो मैंने फिर एमबीए को टीचिंग चालू किया, एंड फिर धीरे धीरे एमबीए को सिखाते सिखाते कॉन्फिडेंस आ गया, फिर सीए को टीचिंग करना चालू कर दिया। एंड वाओ। देन फिर बच्चे पूछते थे मैम आप भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सिखाओ हमको भी। तो थोड़ा थोड़ा एक एक कंसेप्ट सिखाने लगी। फिर बच्चे और डिमांड करने लगे। फिर मतलब ये, फिर बच्चों ने बोला मैम एक बैच ही ले लो आप हमारा, कि पूरा बैच जी। आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे आप हमको। सो तब मैंने पहला एक फ्री बैच ले लिया सिर्फ 10 बच्चों को लेके। इट्स लाइक लाइक एक्सपेरिमेंट कि मुझे वो टीचिंग हम्म। स्टॉक मार्केट का जमेगा कि नहीं, वन आई वाज नॉट श्योर। तो मैंने 10 बच्चों का एक डमी बैच लिया। फिर जब वो कॉन्फिडेंस आया तब मैंने कहा चलो अभी एक प्रॉपर बैच प्लान कर लेते हैं। दैट वाज माय बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बैच व्हिच आई हैड अनाउंस्ड इन पुणे। उसका रिकॉर्डिंग किया और हम्म। उसका पहला लेक्चर जो यूट्यूब पे मैम जो वायरल हो गया, मैं बोल सकती हूँ। तब से ही हम आपको तो फॉलो दैट कर वो रहे उसका हैं। लेक्चर है। क्या ओके। बात है, क्या बात। यस मैम, एंड बहुत तो लोग शेयर बस करते ऐसी हैं है जर्नी। आपकी वीडियो। जी। मैम अभी आप थैंक यू, फिर थैंक यू। यूट्यूब के साथ साथ और क्या कर रहे हैं? बस यूट्यूब के साथ साथ फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी करने के लिए टाइम ही नहीं है। अभी मेरा एक मतलब यूट्यूब के साथ साथ मेरे जो मैंने बोले मेरा एक ऑनलाइन लेक्चर्स का भी एक साइड बाय साइड स्ट्रीम है। तो मैंने अभी जी। बहुत रिसेंटली एक 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, विच इज द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी हम्म। देर पहले बोला ना, मैं टारगेट प्राइस निकालती हूँ स्टॉक्स की, तो वो टारगेट प्राइस कैसे जी निकालते जी। हैं स्टॉक्स की, वो पूरा पढ़ा है मैंने उस कोर्स में। तो फिर वो ओके। कोर्स का लॉन्च की तैयारी है, फिर लोग क्वेरी पूछते हैं, उनको आंसर करना है। ऐसे मेरा अभी आई हैव अ स्टाफ ऑफ ऑलमोस्ट 21 पीपल हु आर माय टीम। वाओ। तो ये सब ऑफिस और तो मैम यूट्यूबिंग, थोड़ा ये कोर्स के बारे में कोर्सेस। और बता दीजिए। अच्छा, तो कोर्स में मैंने बोला ऐसे कई सारे लोग मुझे पूछते थे कि मैम आप ये टारगेट प्राइस लाते कहाँ से हो, आप कैसे करते हैं इसको। तो हम्म। इसी को तो बेसिकली वैल्यूएशन होता है। तो मतलब मैंने शुरुआत तो की थी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स से। फिर लोग बोलने लगे कि मैम अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं बताओ। तो फिर उसका एक मैंने एक अलग कोर्स बना दिया कि मैम बिल्कुल भी विथ नॉन प्राइस कॉमर्स आल्सो। बैकग्राउंड से। अच्छा, विद प्राइस ऑल्सो बता दूं अभी? बाप रे, आई एम नॉट श्योर, मैं शायद गलत प्राइस ना बोल दूं, बट जितना मुझे याद है अच्छा। उतना बता देती हूँ, क्योंकि सेल्स में हैंडल नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो ओके ओके। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का प्राइस टू माई नॉलेज 4,000 रुपए है। ठीक है। जिसमें एक एब्सोल्यूट बिगिनर जो है, जिसको कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, बट जी कहीं ना कहीं जाके अपनी एक जर्नी चालू करना चाहता है, तो उन जी। लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है। अब हम्म। जिनको काफी अच्छा एक बेस तो पता है ऑलरेडी, तो वो जा सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के लिए। फंडामेंटल ओके। एनालिसिस कोर्स में पूरा बैलेंस शीट के हर एक आइटम के ऊपर क्या कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन करना है अपने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 8 पॉइंटर थियरी एक बताई कि मेरे जो फिल्टर्स है 8 फिल्टर लगा देती हूँ मैं, वो सब उसमें जी। मैंने बताया है। या फिर कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है जिसमें आप खुद कुछ स्क्रीन स्क्रीन लगा सकते हो, तो वो वेबसाइट्स हम्म। के थ्रू भी पढ़ा है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट काफी हद तक उसमें मैंने बताई है कैसे यूज कर सकते हो आप। तो दैट इज अ ओके फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। टू माई नॉलेज इट इज समवेयर अराउंड 6,000 7,000 रुपीज। ओके। थर्ड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक क्यों है, क्योंकि अगर आपको अगर भी शेयर अच्छा है ये पता है, पर आपको पता नहीं कि कौन से प्राइस पे लेना चाहिए, हम्म। आई एम नॉट श्योर कि वेदर दिस प्राइस इज करेक्ट और नॉट, तो वो चेक करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस काम हम्म। में आएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आता है। तो ये ओके। टेक्निकल एनालिसिस में कई सारे राइट। मैंने इंडिकेटर्स है, जैसे आपका बॉलिंजर बैंड है, एमएसीडी है, आरएसआई है, अलग अलग पैटर्न्स है, मॉर्निंग स्टार है, या फिर बहुत ढेर सारे पैटर्न्स है।
या फिर इवन इन डॉट ट्रेडिंग व्यू जो नाम की एक वेबसाइट है, वो भी पूरी मैंने उसमें पढ़ाई है। जी तो उसके थ्रू सो बेसिकली ये जो अगर 3 कोर्सेज आप कर लेते हो, बेसिक्स, देन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इससे आपको एक सॉलिड कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरा बेस तो एकदम 100% क्लियर है, उसके बेसिस पे मैं मेरा पहला ट्रेड तो डेफिनेटली ले सकती हूँ। बट अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ले रहे हो, तो लोग जो बोलते हैं ना वेयर टू क्विट, कहाँ पे मैंने सेल करना चाहिए, उसके लिए वैल्यूएशन कोर्स राइट काम आता है आपको, क्योंकि टारगेट ओके प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यूएशन कोर्स में बताया मैंने। तो इनफैक्ट जो मैंने उसका प्राइस है 5,000, बट अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने उसको 40% कम करके 3,000 पे लॉन्च किया है उसको। एंड आई गेस ओके 15th इज द लास्ट डेट, अभी 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा, जब तक 3,000 प्राइस रहेगा उसका। बट आई थिंक वैल्यूएशन में आपको टारगेट, ये तो एक प्री रिकॉर्डेड है ही है, बट इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, एडिशनल 10 जूम सेशंस रहेंगे जिन्होंने भी एनरोल किया है, एंड उनके साथ ऐसे लाइव वन ऑन वन इंटरेक्शन रहेगा जूम सेशंस के थ्रू, विच इज ऑल्सो ओके पार्ट ऑफ दैट कोर्स ओनली। मतलब वो जूम सेशंस के लिए फिर यू नीड नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, अगर आपने मेन ओके कोर्स के लिए एनरोल करा है तो। एंड म्यूचुअल फंड्स का एक अलग से कोर्स है, जिनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसमें भी ऐसे कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स, क्या क्या टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, क्या करेंगे, ये सब बताया है। और एक जनरल, बहुत जनरल कोर्स है विच इज ऑन पर्सनल फाइनेंस। ये सभी ओके मैम अलग अलग कोर्सेस है। ओके आई होप मैम कि कुछ लोग इस वीडियो को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें एंड थैंक यू वेरी मच डेफिनेटली, फॉर ज्वाइनिंग आई होप माय मैंने ज्यादा प्लेजर। टाइम तो नहीं ले लिया नहीं नहीं नहीं, टाइम तो है मेरे पास, कुछ सामने नहीं, लेकिन एक बार बातें करेंगे तो मजा आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मजा आ गया। बिल्कुल मैम आई होप फिर से हम कभी ये सेशन करें एंड थैंक यू वेरी मच मैम डेफिनेटली, थैंक्स अलॉट, इट वाज माय प्लेजर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। ओके मैम या बाय बाय। ओके गाइस अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो कैसी लगी आपका कोई फीडबैक है वो भी आप कमेंट से बता सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को फिर से किसी एक एक्सपर्ट के साथ ऐसे ही बात करने के लिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लीव कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट सेशन ओके टाटा बाय बाय